थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी, ये नाम है सब्जेक्ट के। देयर आर टू, बाय द टू नेम्स दिस सब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। One is electrical circuit theory and second is network theory of this subject. Is generally in second year or third year. Sometimes this subject also known as in some universities are recognized as a network analysis and synthesis or network analysis or network theory. So in this subject, this is the one of the topic in which we have studied the solution of the time domain function. There is a direct method by which you can solve the problem in the time domain and the answer is in time domain. And the second method is by taking the Laplace of the time domain function, convert this time domain function into frequency domain function, and frequency answer is in frequency domain. The answer will be in frequency domain. If you take the inverse Laplace of this function, you will get the function in time domain, and or the answer या solution is in time domain function. So there are singular functions are known as step function, ramp function, impulse function. You have to synthesize, get the synthesis of these three functions. Synthesis meaning is step plus minus step, ramp plus minus ramp, step plus minus ramp. So there are three methods of synthesizing the three functions. First is step function, second is ramp function, third is impulse function. You have to find step plus minus step, ramp plus minus ramp, and third is ramp plus minus step. We start with the first function is the step function. पहले देखेंगे हम step function क्या होता है। step function एक्चुअल में क्या है? This is a DC सिग्नल और एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल को क्या कहेंगे हम? स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन वो फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है आफ्टर स्विचिंग ऑन द स्विच। स्विच को ऑन करने के बाद फंक्शन का जो वैल्यू आता है कांस्टेंट आता है। जैसे कि कोई डीसी सोर्स, दिस इज अ डीसी सोर्स, इफ यू स्विच ऑन कर देंगे स्विच को तो आउटपुट जो आएगा वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फंक्शन आएगा, ये डीसी वैल्यू आएगा। दिस फंक्शन इज नोन एज स्टेप फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज ut is equal to 0. This is denoted by ut. ut is equal to 0 for t less than 0. If time is less than 0, the function value is 0. t is equal to 1 for t greater than 0. यदि वैल्यू t का ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू क्या आएगा? t का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू रहेगा 1 रहेगा, या यूनिट स्टेप भी बोलेंगे इसको। सो दिस इज ए स्टेप फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेप फंक्शन इज k, देन दिस इज नोन एज kut, और दिस फंक्शन इज नोन एज स्टेप फंक्शन व्हेन time is less than 0, so there is no signal at the output. When you switch on or t is greater than 0, the function value is 1 or a unit value. अब this may be delayed step function. Delayed step function is the function which is not starting from t is equal to 0. ऐसा फंक्शन है delayed function जो स्टार्ट होता है आफ्टर सम टाइम। यदि t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा था तो इसको लेते थे हम t ut। अभी ये डिफाइन कर सकते हैं t ut माइनस a इज इक्वल टू 0 यदि t लेस देन a है, और इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन a। टाइम a के करस्पॉन्डिंगली यदि वैल्यू आता है फंक्शन का t ग्रेटर देन पे, इसका वैल्यू क्या आता है? 1, और यदि नहीं है तो क्या आएगा? t से a से छोटा है टाइम तो इसको डिलेड बोलते हैं। t 0 से ना शुरू होकर आप कितनी देर बाद शुरू होता है फंक्शन? t माइनस a। आफ्टर सम टाइम आता है, मतलब आफ्टर 2-3 सेकंड बाद यदि फंक्शन आए तो उसको डिलेड फंक्शन बोलेंगे, और ये 0 रहता है उस टाइम से पहले तक, और उस टाइम के बाद क्या होता है? शुरू होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है? 1।
और इसका लाप्लास लेंगे यदि, लाप्लास ऑफ ut इज इक्वल टू क्या होता है 1/s, एंड लाप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए डिलेट का क्या होता है e टू द पावर माइनस as अपॉन s। ये दोनों फॉर्मूला यू शुड रिमेम्बर, ये ध्यान में रखने चाहिए, ये दो लाप्लास हैं इनके। और यदि इसका एम्पलीट्यूड k है, इफ द एम्पलीट्यूड k आता है ut का 1 नहीं है, तो ये क्या आएगा k अपॉन s आएगा। और लाप्लास ऑफ ut माइनस a का मैग्नीट्यूड k है, तो ये k इंटू e की पावर माइनस as अपॉन s आता है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये मैग्नीट्यूड k फंक्शन है। दिस इज द मैग्नीट्यूड k फंक्शन ऑफ द स्टेप फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन इज रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन का मतलब है टाइम वेरिंग फंक्शन। टाइम वेरिंग फंक्शन, द मीनिंग ऑफ द रैंप फंक्शन इज, रैंप फंक्शन इज डिफाइंड एज, रैंप ऐसा फंक्शन है rt इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0 एंड rt इज इक्वल टू एनी मैग्नीट्यूड m और t इज इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर देन 0। और इसका स्लोप यदि m है तो mrt लेंगे और mt लेंगे यहाँ पे। दिस इज ए time varying function. With the time, the value of the function rises. So this is increasing function. The magnitude of this function is slope. Slope is the height upon base. If you take the height upon base, give the value of the slope. यदि इसका slope m है, तो m rt is equal to 0 for t less than 0 के लिए, और m into t for t greater than 0 होगा दिस फंक्शन। और ये भी डिले होके आ सकता है, इफ एनी टाइम t इज a डिले टाइम इज देयर, देन इसको डिलेड फंक्शन बोलेंगे। नाउ डिलेड देर से आता है यदि थोड़ा, डिलेड रैंप फंक्शन। डिलेड रैंप फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन स्टार्ट इंस्टेड ऑफ 0 after a time t, after a time a, then r t minus a is equal to 0, t less than a is equal to t greater than a. If the slope of this function is m, then m r t minus a is 0, m r t minus a is equal to t for t greater than a. Now the Laplace of rt का लाप्लास क्या होता है 1/s स्क्वायर। लाप्लास ऑफ डिलेड रैंप फंक्शन का क्या होता है e टू द पावर माइनस as अपॉन s स्क्वायर। इसका यदि स्लोप m है तो m rt इज इक्वल टू क्या होगा m अपॉन s स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ m r t माइनस a क्या होगा m इंटू e टू द पावर माइनस as बाई s स्क्वायर। ये इसका लाप्लास होता है। जो रैंप फंक्शन है वो डिलेड हो गए और मैग्नीट्यूड स्लोप हो गए उनके, या मैग्नीट्यूड हो गए, तो उनको क्या बोल देंगे हम, दैट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। रैंप फंक्शन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन है हैविंग एनी स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लाइन का, हाइट अपॉन बेस और tan थीटा, उससे हमें क्या मिलता जाएगा स्लोप। एंड थर्ड फंक्शन इज इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स ऐसा फंक्शन है जो t इक्वल टू 0 पर अपियर होता है, और टाइम जैसे ही बढ़ाएंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। सो इट इज डिफाइंड एज डेल्टा t इज इक्वल टू 0 फॉर t इज इक्वल टू t नॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 फॉर t इज इक्वल टू 0। t 0 पे ये फंक्शन का वैल्यू 1 आता है, और यदि टाइम बढ़ता है स्विच ऑन होने के बाद ये फंक्शन का वैल्यू 0 आता है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये एक पल्स होता है, ऐसा पल्स है जिसके दिस इज ए पल्स डेल्टा टी, द लेंथ ऑफ दिस पल्स एंड दिस इज विड्थ ऑफ दिस पल्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इनटू विड्थ ऑफ द पल्स शुड बी यूनिट। ये दोनों
एक ऐसा पल्स है जिसका एरिया यूनिट हो। यदि हम लेंथ बढ़ाते हैं तो विड्थ कम होना चाहिए। इन सच ए मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पल्स शुड बी 1। तो देखिए ये ऐसा फंक्शन है जिसका प्रैक्टिकली ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया ऑफ द पल्स शुड बी 1 और द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड विड्थ शुड बी 1 एंड द लाप्लास ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1। इंपल्स फंक्शन का लाप्लास 1 होता है। इंपल्स फंक्शन का लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा 1। तो ऐसा पल्स है ये जो यदि विड्थ हमने बढ़ाई तो लेंथ, विड्थ को कम किया तो लेंथ बढ़ जाएगा। दिस इज L1 W1, दिस इज L2 W2। यदि हम लेंथ कम करते हैं तो विड्थ कम करते हैं तो लेंथ बढ़ता है, यदि विड्थ बढ़ाते हैं तो लेंथ कम होगा। इन सच ए मैनर दैट द एरिया ऑफ द पल्स शुड बी 1। यूनिट एरिया आना चाहिए। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम? इम्पल्स फंक्शन कहेंगे। अब वेव सिंथेसिस, इनको तीनों को मिक्स करेंगे हम फंक्शन को। रैंप के साथ में रैंप मिला सकते हैं, स्टेप फंक्शन को स्टेप के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं और स्टेप को रैंप को प्लस माइनस कर सकते हैं रैंप। तो वेव सिंथेसिस, ये तीनों का सिंथेसिस कर सकते हैं हम। वेव सिंथेसिस 3 टाइप्स होंगे वेव सिंथेसिस के। फर्स्ट स्टेप प्लस माइनस स्टेप। मतलब क्या होगा, डीसी को हम यदि डीसी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो डीसी आएगा, एक्चुअल फंक्शन क्या आएगा? स्टेप ही आएगा। सेकंड क्या कर सकते हैं हम? रैंप को रैंप के साथ में ऐड कर दें या स्टेप को रैंप के साथ में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्टेप प्लस माइनस रैंप इज इक्वल टू रैंप ही आएगा। रैंप का लेवल या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। और थर्ड क्या है? रैंप प्लस माइनस रैंप यदि करें, रैंप फंक्शन को रैंप फंक्शन के साथ में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इन वन केस क्या आता है? हमारा स्टेप आता है। जबकि इक्वल एंड अपोजिट रैंप लगाएंगे तो वो एक डीसी बना देगा, अदरवाइज रैंप ही आएगा। रैंप को रैंप के ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे रैंप ही फंक्शन मिलता है। You obtain the ramp function by adding or subtracting the ramp, except one case when the magnitude of the ramp are equal and opposite. So first step plus minus step. Step को step के साथ में यदि ऐड करें तो we can take the example. Example में भी ऐसा कोई फंक्शन है starting from 0, this is ut, this is function f1t and this is another function f2t. If you are adding these two signals 1 2 3 4 seconds, after 2 seconds this step starts and the value of this and magnitude of this is 1 2 3. So this is 3u of t minus 2. If you want to add these two signals, then final ft signal क्या होगा? ft ये 0 से आ रहा है, ft is equal to f1t, ऐड करेंगे f2t, ऐड भी कर सकते हैं हम, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यदि हमने ऐड किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड टाइम ले लिया, 0 से 2 तक ये ही सिग्नल आएगा, क्योंकि ये सिग्नल आना शुरू नहीं हुआ है अभी। ये कहां से शुरू होता है? आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद यहाँ 1 वोल्ट आ रहा है और यहाँ इनकेस ये 3 वोल्ट और ऐड कर दें इसमें तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5। तो ये लेवल इसका बढ़ के 5 तक पहुंच जाएगा। यदि हम इसको ऐड कर दें यहाँ पे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट तो ये है और 3 वोल्ट ये, 4 वोल्ट आने लगेगा। ये दिस वैल्यू कितना आने लगेगा? 4। 1 ये और 3 ये ऐड कर दिया और 1 कंटिन्यूअसली आता जाएगा। सो दिस इज द फाइनल वेव फॉर्म और द एडिशन ऑफ ut विद 3u t minus 2। और यदि हम इसको माइनस करें
माइनस करने का मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन से हम सब्ट्रैक्ट करें सेकंड फंक्शन को, तो एफ टी यदि माइनस करते हैं f1t माइनस f2t इज इक्वल टू यू टी माइनस 3 u ऑफ t माइनस 2। तो यहाँ पे फंक्शन 0 से शुरू होगा, ये एफ टी है और ये 1 टाइम है, दिस इज 2 3 4 टाइम 5 टाइम 6 7 ये टाइम एक्सेस। और हम इसको क्या करेंगे, 2 तक 1 वोल्ट आ रहा है यदि ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट या -1 वोल्ट -2 वोल्ट और -3 वोल्ट -4 वोल्ट ऐसा आ रहा है। और ये 1 वोल्ट था, कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा, 2 तक 1 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन उसके बाद -3 मिला दिए 1 में, तो ये कितना पहुंच जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा नेगेटिव का। तो इसको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा -2 तक, उसके बाद कोई नहीं रोकेगा इसको, ये कांस्टेंट होता चला जाएगा। सो दिस इज द सम ऑफ द 2 स्टेप फंक्शन, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट इज स्टेप प्लस माइनस रैंप। सेकंड में क्या मिलाएंगे हम, स्टेप को प्लस माइनस रैंप। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप प्लस माइनस रैंप। स्टेप को रैंप के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट इज स्टेप प्लस माइनस रैंप। स्टेप को रैंप के साथ में यदि ऐड करना है, तो यदि कोई फंक्शन 0 का स्टेप आ रहा है, जैसे f1t rt आ रहा है, स्लोप इज 1, इसको ऐड कर रहे हैं हम रैंप पे, इसके साथ में हम मिला रहे हैं यदि यूनिट f2t स्टेप के साथ में, रैंप के साथ में क्या मिला रहे हैं हम, स्टेप मिला रहे हैं, दिस इज f2t। इन दोनों को यदि जोड़ रहे हैं हम, तो f1t इज इक्वल टू ft इज इक्वल टू f1t माइनस प्लस f2t। इसका मतलब ut को किसके साथ में ऐड कर रहे हैं, या rt को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, ut के साथ में। इसका मतलब ऐसा है, यदि ये 1 मैग्नीट्यूड का है और इसका स्लोप 1 है, तो यदि हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ft जो आएगा, ये जो स्टेप है रैंप के लेवल को बढ़ा देगा 1 वोल्ट। तो अभी ये कितना ऊपर से आने लगेगा 1 वोल्ट से, और कैसा जाने लगेगा, सीधा rt। तो ये दोनों का सम क्या आ गया, दिस वोल्टेज हैविंग इनिशियली 1 वोल्ट डीसी एंड देन रैंप। और यदि हम इसको ही माइनस करें, माइनस करने का मतलब क्या है, हम यदि स्टेप के साथ में रैंप के साथ में स्टेप को माइनस करें, तो ft क्या होगा, rt माइनस ut। इसका मतलब कैसा है, ये माइनस आ रहा है, अभी माइनस आने का मतलब क्या है, ये हमारा ft है जो 0 से आ रहा था, और उसके लेवल को ये 1 वोल्ट कहाँ कर देगा, नीचे माइनस प्लस 1 वोल्ट 2 वोल्ट और ये माइनस 2 वोल्ट। तो अभी 1 वोल्ट ये नीचे को आने लगेगा, 1 वोल्ट से ये राइजिंग, क्योंकि इसका स्लोप प्लस है, ऐसे जाने लगेगा। ये 0 से ना जाके कहां से जाएगा, अभी -1 से राइजिंग होगा। एंड थर्ड स्टेप इज रैंप प्लस माइनस रैंप। ऐसा भी हो सकता है कि रैंप को रैंप के साथ में ऐड करें। तो एक केस मैंने बताया था, यदि हमारा ये f1t 0 से रैंप आ रहा है 1 स्लोप, एंड आफ्टर 2 सेकेंड f2t आता है। f2t क्या आता है, एक 1 2 3 सेकेंड कभी भी आ सकता है। तो 2 सेकेंड बाद यदि ये rt-2 आ रहा है, इन दोनों को सॉरी ये माइनस का आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, ये ऐसे जा रहा है माइनस, इसका स्लोप माइनस है t-2। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे, तो ft क्या आएगा, f1t प्लस f2t माइनस फंक्शन है। यदि इन दोनों का हम सम करेंगे, तो ये फंक्शन पहले 1 to 2 सेकेंड तक रैंप ही रहेगा, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड 5 ये टाइम, ये ft ये क्या होगा, एक्चुअल में रैंप रहेगा 2 सेकेंड तक,
उसके बाद ये इसको स्टेप बना देगा, क्योंकि इसका स्लोप +1 और इसका -1, जीरो स्लोप का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा ग्राफ आने लगेगा। तो ये किसका केस हो गया, जब दो इक्वल एंड अपोजिट रैंप को हम ऐड करते हैं। और यदि दो रैंप हैं, एक का वैल्यू क्या है, f1t = RT और f2t = कितना है, मे बी -2 R(t-3), ऐसा है। यदि ये एक फंक्शन रैंप ऐसे जा रहा है RT, दिस इज f1t, और दूसरा फंक्शन f2t है, f2t, और ये 1 2 3 सेकंड बाद माइनस जा रहा है 2 R(t-3), तो इनको यदि ऐड करेंगे तो ft क्या आएगा, ये 1 2 3 1 2 3 4 टाइम एंड -1 -2। अब ये स्लोप 1 है इसका और उसका स्लोप -2 है, दिस इज +1 एंड दिस इज -2 स्लोप। 3 सेकंड तक अप टू 3 सेकंड यू विल गेट द रैंप फंक्शन ऑफ स्लोप 1। उसके बाद -2 + 1, इसका स्लोप कितना हो गया, -1 स्लोप होने का मतलब क्या है, ये 4 5 और ये 6। अब इसका हाइट कितना है, 3, तो बेस भी कितना हो चाहिए, 3, तो ये ऐसे निकल जाएगा 6 टाइम के बाद। और ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म। और हमें रैंप प्लस माइनस रैंप भी क्या मिलता है, रैंप भी मिलता है, एक्सेप्ट वन केस व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट स्लोप रैंप को हम मिलाते हैं तब स्टेप मिलता है। और यदि ये प्लस माइनस किए दो रैंप तो इनमें रैंप भी मिलता है। सो दिस इज द वेव सिंथेसिस ऑफ द थ्री सिंगुलर फंक्शंस, स्टेप प्लस माइनस स्टेप, स्टेप प्लस माइनस रैंप एंड रैंप प्लस माइनस रैंप। स्टेप प्लस माइनस करेंगे तो स्टेप ही आएगा, स्टेप प्लस माइनस रैंप करेंगे तो रैंप ही आएगा, रैंप प्लस माइनस करेंगे तो एक केस में स्टेप आएगा, बाकी में रैंप आएगा।